and uh, Ria. Hello. अदिति, द रिकॉर्डिंग स्टार्टेड. एक बार फिर से स्टार्ट कर दो. Yeah, sure. So, good evening, everyone. We are starting with today's session. I'm Aditi Tiwari, currently pursuing BTech in IT. And Good evening. I am Riya Tanwar from BTech second year IT branch. so let's start with this session. We'll be learning the following topics today: while, do while, switch, and nested ifs. So, what is the first thing that comes to your mind when you think of a loop? Closed surface. Something that repeats itself after some given conditions, according to some given conditions. Okay, yeah, that's both of those things were correct. And now, what do you infer from the word while? As long as the Either condition two is true, options. the loop should be run. Okay, so I heard someone saying as long as the As, loop will as run, something long like that, as right? long as the condition in the bracket of while is true, the loop should run. Yes, that's perfect. So essentially, this is what is going to be our while loop. As long as a certain condition is true, we will be repeating a particular task. And that is why it's called a loop, right? You get the intuition behind the naming. And now let's move on to the syntax of it. So we will use the while keyword here. And hello, What is the meaning of while? while while is basically the English. You can just consider it from the English perspective. While it would be raining, I won't go out of the house. So basically, the statement would mean that whenever there is rain, you won't be going out. And as soon as the rain stops, you will be going out of the house. Similarly, in C++, or for that matter, any coding language, a while loop means that while a certain thing is true, you would be doing it. And as soon as it gets false, you would stop executing it and move on to the next task. And so here is this. I hope that that's clear. Yes, it is. Yes. Okay. So now we move on to the syntax of a while loop. A while loop, basically, the pseudocode would be something like this. You'll have a while keyword here, and then in between you will have a boolean expression. Now a boolean expression means it would evaluate to either true or false. तो जब तक ये ट्रू रहेगा, तुम्हारी जो while loop के अंदर स्टेटमेंट है that will be executing. And as long as and जैसे ही कुछ हम इसमें अपडेट्स करेंगे, जिससे कि जब ये थोड़ी देर बाद जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, तब हम एग्जिट कर लेंगे इस लूप से. And these are basically the points that I've written here, which is translating to what I just said. 2 मिनट के लिए absorb कर लो ये, then we will move on to a live demo. Cool. So किसी को doubts हैं अभी तक? दी Yeah. आपने बोला कि लूप होता है जब कोई चीज कोई भी फंक्शन रिपीट कर रहा होता है और वाइल का मतलब होता है कि अगर वो ट्रू है तो वो रिपीट होगा है ना जी. और अगर फॉल्स है तो वो फिर उस बॉडी से बाहर आ जाएगा है ना हाँ. ठीक उस है बॉडी से. और अगर इनिशियली वो कंडीशन फॉल्स है, लाइक तुम्हारी इनिशियली ये जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो फॉल्स है, तब भी ये while लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगा. ओके ओके ओके. तो दिस इज द फ्लो चार्ट. ओके, ये बेसिकली जो मैंने बोला उसका एक फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन है. एंड यू विल सपोज यहाँ तुम्हारा प्रोग्राम चल रहा है, एंड चलते चलते प्रोग्राम में यू एनकाउंटर अ while loop, एंड देन हाउ विल द while loop वर्क. सो इनिशियली फर्स्ट स्टेज पे वो उस बुलियन एक्सप्रेशन को चेक करेगा. अगर वो ट्रू है तो जो तुम्हारे लूप की बॉडी है उसमें जो भी कंडीशंस हैं, जो भी स्टेटमेंट्स हैं, उन सबको एग्जीक्यूट करेगा, एंड इट विल रिटर्न बैक यहाँ पे. फिर वो डिपेंडिंग अपॉन द चेंजेस दैट इट डिड टू द बूलियन एक्सप्रेशन एंड उसके वेरिएबल्स, दिस विल, अगर वो अगेन ट्रू हुआ तो वो वापस आएगा,
अगर वो false हुआ तो it will straight away move out of the loop and go on to the next particular task in your program. Okay. हाँ जी. Yes, it's clear. The suggestion is you can click on hide button and the this message will be hided, which is like it's interrupting between the PPT. Okay, sure. Thanks for that. So अब एक कोड है यहाँ पे which is telling us about this boolean expression के अंदर जो variable है हमारा int I वो क्या क्या करते हैं. So first stage पे हम उसको initialize कर रहे हैं 0 से. That is the initialization step. Okay. Next stage पे अब हम इसको एक boolean expression के form में लिख रहे हैं कि I less than 5. तो this will either evaluate to true or false and hence ये एक boolean expression है. And now the while यहाँ पे ये check हुआ and this was true, so we went inside and यहाँ पे जो भी हमारी while loop की body के अंदर का काम है हमने वो किया and हमने update किया. Now it is important to note that if you don't update it और अगर तुम्हारी ये initial condition true रहेगी तो वो infinite loop चला जाएगा and तुम्हारे program में एक error आएगा and that would be a runtime error. compilation में कोई error नहीं होगी, बस वो runtime error रहेगा. And so that's one thing you need to keep in mind, that you need to update your variables in a while loop. For loop में Can you तुम्हारे please syntax repeat the while loop again? There was network issue. while loop starting से. नहीं दीदी, ये जो आपने पढ़ा रहे हैं अच्छा okay. So यहाँ पे हमने एक variable लिया int I, उसको initialize कर दिया. After that we are having a boolean expression here. Now this expression will either evaluate to true or false depending on the value of I. So I की value initially 0 है, तो obviously ये true है. You guys can see my cursor, right? Yes. Yes. Yeah. फिर इसके बाद वो जब वो true होगा तो वो while loop की body के अंदर गया and उसने जो भी statements थे execute किए and फिर उसने update कर दिया. Now this update, I was saying कि ये update वाला step important है क्योंकि अगर तुम ये update नहीं कर रहे हो तब भी ये code run करेगा. But the thing is compile हो जाएगा but run जब करेगा तब इसमें एक error आ जाएगा क्योंकि ये infinite चलते रहेगा. क्योंकि since I will always be lesser than 5 if we don't update this, तो ये चलते जाएगा and you won't be able to move on to the next task. दी वो समझ नहीं आया मुझे, आपने जो बोला ना इनफिनाइट वाला. जब हमने अगर जैसे हमारा आई है वो लेस देन 5 है तो वो 5 मतलब 4 तक ही तो चलेगा ना कोड, इनफिनाइट कैसे? मतलब मैं बोल रही थी कि अगर आपने अपडेट 4 तक क्यों चलेगा. मैं बोल रही थी अगर जब ये अपडेट हटा देंगे हम तब इनफाइनाइट जाएगा. अगर तुमने आई प्लस प्लस वाली स्टेटमेंट हटा दी तो. You want me to run it on a compiler and show you? The I yes plus plus yes दीदी. Yes, please, दीदी. क्या शो कर रहा है the I plus plus? Volume करिए अपना. Hello? पहले someone's mic is unmuted I guess. हाँ तो यहाँ पे एक बार बस इसका एक तुम लोगों को जो आउटपुट लग रहा है इसका क्या होगा वो बता दो, then I will show you on the compiler. 0 1 2 3 4. Okay, that's correct. नहीं दीदी, I think होगा ना true है. क्या होगा? आपको कुछ डाउट था, आपने क्या बोला? मैंने पढ़ा ना true और false वाली कंडीशन में, तो वही मैं बोल रही थी कि false होता तो 0 होता है ना और true होता तो 1 होता है. दीदी. हाँ यार, too many people are speaking at once. वो वाली लड़की क्या बोल रही थी? वो false होता है तो 0 होता है. आज भी मेरे को ना बिल्कुल भी सी नहीं आती, तो मैंने अभी आज ही क्लास में पढ़ा था कि मैम ने पढ़ाया था कि 0 आता है तो false होता है और 1 आता है तो true होता है, मतलब ऐसे ही. अच्छा, that's true. In fact अगर 1 भी नहीं, अगर तुम 2 भी लिखोगे तब भी वो true होगा. इन C++ में बोल रही हूँ. हाँ मैं वही पढ़. तो यहाँ पे मैं I equals to 0 को कंपेयर कर रही हूँ ना किसी चीज से, लेस देन 5 से. मैं सीधा सिर्फ I थोड़ी लिख रही हूँ. जो ये एक्सप्रेशन है ये तो ट्रू है ना कि 0 इज लेस देन 5. तो इसीलिए वो एग्जीक्यूट हो रहा है और 1 2 3 4 प्रिंट हो रहा है. नाउ आई विल जस्ट शो यू द केस दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. दीदी कि अगर हम अपडेट नहीं. हाँ बोलो. ये काउंट वाली स्टेटमेंट कैसे बनाई है आपने?
यार count मतलब you mean the see out statement. ये वाली तो टेंट करे वॉइस क्लियर नहीं है थे. आपकी, थोड़ा ब्रेकिंग हो रही है। Hello, is my voice not clear to जी everyone? जी क्लियर है, क्लियर है। It's clear, Di. अच्छा ओके यार ये सी आउट स्टेटमेंट तो फर्स्ट क्लास में बताया होगा आई थिंक कि ये बेसिकली हमारा आउटपुट स्ट्रीम में डालती है जो भी वैल्यूज हम सी आउट के अंदर डालते हैं वो आउटपुट होता है एक्चुअली इट्स माय फर्स्ट क्लास, दैट इज व्हाई। यार सो It is similar to एक्चुअली ना printf. तुम या एग्जैक्ट इट्स प्रिंटफ के सिमिलर है एंड आप प्लीज एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना क्योंकि अब अगर इफ आई स्टार्ट इनटू सी आउट एंड ऑल अभी से तो आई प्लस प्लस सबको आया ना सब कुछ या Yes. ये भी नहीं Yes, आया Didi. यस Yes, Didi. okay I plus plus for those of you who don't get I plus plus it is the same as I plus equals to 1 okay and ये होता है I equals to I plus 1 के equal ये तीन ways हैं increment करने के लिए I को but we usually would go with I plus plus and now moving on to the compiler to just show you guys how it would work तो ये सब ये रहने दो ये मेरा boilerplate code है you don't need to see it so we'll include the header and we tested if we're testing कि ये boolean expression सही है कि नहीं and काउंट में एन नहीं लिखा। यार वो count नहीं हो रहा वो see out है अच्छा that is ठीक है, the word keyword वो printf नहीं हो printf की जगह यहाँ पे see हाँ out हाँ होता ठीक है ठीक है, not count जी जी। okay so ये this word iostream.h नहीं होगा नहीं यार वो hash वो include आप no it's iostream for C++ version 14 and using 17 Should be using namespace std. that would be there right वो मैंने अभी delete किया ना तो इसलिए हट गया They can be avoid writing return 0 here. you can but it's not recommended and I will tell you why so Okay. ये आ गया output and just a second I'll get back to why we should write a return 0 here अगर मैं इस condition को हटा दूं तो ये infinite loop में चला जाएगा and you will see a error Okay, Dee, you thank can you. see ये running दिखाते रहेगा और फिर यहाँ पे एक रन टाइम एरर आ जाएगा क्योंकि ये अगर आप यहाँ पे इसका आउटपुट देखो तो ये पूरा 0000 प्रिंट करते जा रहा है राइट Why you write return 0? yeah we write return 0 because every program has signal codes okay so like जैसे अगर तुम्हारा प्रोग्राम किसी ऐसी लोकेशन को एक्सेस कर रहा है जो तुम्हें अलाउड नहीं है तो वो एक पर्टिकुलर सिग्नल कोड रिटर्न कर देगा Didi, I'm so sorry to disturb you. Please आप थोड़ा zoom कर सकते हो इसका actually कुछ भी नहीं दिख रहा। यार तो पहले क्यों नहीं पता है अब दिख रहा है नहीं दीदी समझ आ रहा है सब कुछ पर दिख नहीं रहा तो मैं ये कह रही थी थैंक यू सो मच हाँ ठीक प्लीज है। zoom कर सकते हैं स्क्रीन अभी जूम हुई कि नहीं हुई हाँ हो गई दीदी ओके दीदी जी रिटर्न 0 बता दो। हाँ वही बता रही थी यार तो मैं बोल रही थी कि हर एक प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में देयर आर सम सिग्नल कोड्स सो सिग्नल कोड 0 का मतलब होता है कि जो तुम्हारा कोड है वो परफेक्टली रन किया एंड इट हैज रिटर्न्ड अ स्टेट ऑफ 0 कभी कभी ऐसा होता है कि तुम जब अपना कोड कंपाइल करते हो तो तुम्हें दिखेगा एरर रिटर्न्ड स्टेट 1 ऐसे करके कोई एरर्स आते हैं राइट तो हर एक 0 इज 1 कोड विच मीन्स दैट कि सही एग्जीक्यूट हुआ है यू कैन अवॉइड दिस राइटिंग टोटली बट देन कभी अगर तुम्हारा इंटरव्यू हो रहा है और तुम्हारे इंटरव्यूअर ने पूछ लिया कि तुमने रिटर्न 0 नहीं लिखा एंड इसका क्या सिग्निफिकेंस है देन यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारा प्रोग्राम किसी ऐसी मेमोरी को एक्सेस कर रहा है कि जो कि अलाउड नहीं है
तब एक पर्टिकुलर कोड रिटर्न होगा। कभी कभी रन टाइम जीरो तभी रिटर्न करता है जब सब कुछ रन परफेक्टली, एंड दैट्स द रीजन वी राइट रिटर्न जीरो, व्हिच मींस कि हमारा कोड सही से चले। Didi, your voice is If not, it cracking a will lot. Yes, sir. Yes, Didi, it's breaking. एक सेकंड यार, इज इट बेटर नाउ? Yes. हेलो। Yes, it's तो अगर मैं रिटर्न जीरो Yes, हटा भी Didi. दूं तो चलेगा, बट इट इज प्रेफरेबल टू राइट इट, एंड दैट्स व्हाई आई और अगर ऑलवेज हम इंक्लूड इट। और Didi, अगर हम could you काउट please वाली reason और once more? और अगर हम काउट वाली स्टेटमेंट हटा दे और श्योर। रिटर्न वाली भी हटा दे तो फिर एरर आएगा ना? एरर तो अभी भी वैसे भी आएगा क्योंकि हम अपडेट नहीं कर रहे हैं, एंड इट्स सी आउट नॉट काउट। For the girl who asked the reasoning, it's because every program has different status codes, and return zero status का मतलब होता है कि तुम्हारा प्रोग्राम सही से चला। अगर मैं ये हटा दूं तो ये चलेगा, ऑब्वियसली चलेगा, बट इंटरनल बिहाइंड द सीन्स भी तुम्हारा प्रोग्राम रिटर्न जीरो करता है कंपाइलर को। आई होप दैट मेक्स क्लियर। Okay, Didi, thank you. But like in some cases, we do avoid writing it. So, like, how do we differentiate where Yes, it's required and not? When do I you also want to ask the same avoid thing, writing? that if we use void. You write void main over here. Again, that's a very bad practice, and I'm telling this because I had mentors in like from the Women Tech Makers program, and they actually told us to avoid writing void main for the simple reason कि तुम रिटर्न करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, बट बिहाइंड द सीन तुम्हारा प्रोग्राम एनीवे रिटर्न करेगा ही करेगा। So I mean, just it will just save you one line of code, but then if you're using it, you need to know the background information behind it. दीदी, हाँ, if we didn't mention the updated value, और अगर हम रिटर्न जीरो लिख रहे हैं तब तो हमारा आंसर 0 0 चलता रहेगा वो इनफिनाइट तक। बट नहीं अगर यार, हमने अब you're रिटर्न saying कि मैं ये सी आउट वाली हटा दूं, बस यही ना? सी आउट नहीं, सी आउट वाली नहीं, अपडेटेड वाली स्टेटमेंट आई प्लस प्लस हाँ हाँ, बोलो। हाँ ये फिर? हटा दिया। हाँ अब जो आउटपुट आएगा वो तो इनफिनाइट जीरो चलेगा, हाँ है ना? और अगर हम हाँ रिटर्न जीरो भी हटा देंगे इसी में तो फिर क्या आएगा? यार, आई गेस यू डिडंट अटेंड योर फर्स्ट क्लास, तो बेसिकली इस रिटर्न जीरो का काम नहीं है। इसको हटा दो तुम अगर एक सेकंड के लिए। वो जो 0 0 आउटपुट में आ रहा है वो इसके वजह से आ रहा है, इसकी वजह से नहीं आ रहा है, और वो इनफाइनाइट। It will be helpful if you teach us for like अभी का जो आप पढ़ाने वाले थे आज, because कई स्टूडेंट्स न्यू हैं और उन्होंने लास्ट सेशन देखा नहीं है, तो उस वजह से आज की क्लास तो पुराने डाउट्स में ही निकल जाएगी। See, Yeah, Didi, that's you what I should said. continue teaching. You take down the Yes. next class जब ना आप Yes. attend करते हो, हाँ, वरना तो Yeah, हम the and the पुराने में new ही रह students जाएंगे। will watch. Yeah, the new students पुरानी रिकॉर्डिंग और आज की रिकॉर्डिंग देख लेंगे नेक्स्ट क्लास, तो उनके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। Okay, हम भी वरना हम पुराने में ही रह जाएंगे और आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे फिर तो। okay. All of you started speaking एक साथ. I said that to the girl before also. Let's not pounce on her. And तो अब चलो हम questions करते हैं. So उस केस में the example that I showed you पहले, उसमें we were printing from 0 to 5. Now I want you to give. Now I want to write a code which will print in the decreasing order. So any ideas, intuitions कैसे होगा? 5 मैं चाहती हूँ कि मेरे कोड का कि वो आउटपुट आई आए प्लस 5. प्लस की जगह आई माइनस माइनस लिखना है। अच्छा, और इनिशियलाइज कैसे होगा वो? एंड इक्वल टू सी लिखेंगे, एरोस उल्टे हो जाएंगे। n आउट में जो एरोस बना रहे थे वो उल्टे हो जाएंगे। नहीं, you're wrong. I equal to 5 and then I will connect it. I equals to 5 से start कर। Can you repeat the Five. question? What was the question?
दी आई ग्रेटर देन इक्वल इनिशियलाइज 5 से आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे तो 0 तक जाएगा। या दैट वाज परफेक्ट एंड यही होगा आंसर। एंड किसी ने एंड हम आई माइनस माइनस करने के अंदर प्लीज अनम्यूट कर लो कोई जिसके बैकग्राउंड में नॉइज आ रही है। हाँ, और जिसने क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन ये था कि हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है टिल 0, 5 4 3 2 1 0। तो इसका कोड विल बी समथिंग लाइक दिस, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, प्रिंटिंग सी आउट आई करेंगे हम। एंड लेट्स सी इफ इट रन्स। दी, can you ये please आई explain the माइनस difference माइनस between सबको समझ I आया? plus plus and plus plus I? यार प्लस Yes. प्लस यार दैट्स एंड अ टॉपिक फॉर अनदर क्लास। मैं तुम्हारे डाउट बाद में लेती हूँ बिकॉज नहीं तो बाकी लोगों का टाइम वेस्ट होगा। Okay, okay. एंड यू कैन सी यहाँ पे ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट हो गया। तो ये तो सिंपल था, राइट? किसी को डाउट है इस कोड में? No, Di. नो दी। Everybody, can I take it as a no? Yes. We can move on to the next question. Next question is printing the first 5 multiples of a number, okay? First 10 लिखा है मैंने यहाँ पे, हम 5 ही कर देते हैं, ठीक है? First 10 multiples of a number. तो मैं एक नंबर ले रही हूँ int n, इनपुट लिया मैंने उसका, मुझे उसके फर्स्ट 10 नंबर्स प्रिंट फर्स्ट 10 मल्टीपल्स प्रिंट करने हैं। यानी इंट्यूशन की कैसे चलेगा ये कोड? I equal to 1 and you run it from 1 to 10 and then print n into I. And then see out n into I. N into I. और I plus plus, right? I plus plus, yes. Perfect. That's the code and मैं लिखती हूँ फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ सबको। तो हम पहले int मल्टीप्लायर ले लेते हैं, ठीक है? Multiplier. I don't know how many sessions I'll have with you guys, but it is important कि तुम अपने variables को अच्छे से name करो. It will help you in the long run. फिर हम जो हमारा multiplier है, that will go on till less than equal to 10, okay? हमें first 10 multiples print करते हैं. Then we will simply be printing n star multiplier. एंड देन मल्टीप्लायर को हम हर बार, क्योंकि हम n into 1 n into 2 करेंगे, इसलिए हम इसको प्लस प्लस कर देंगे। सिंपल कोड। नाउ लेट्स सी इफ इट रन्स। नो, मुझे इनपुट देना पड़ेगा पहले 4 का। तो यू कैन सी 4 का टेबल प्रिंट हो गया यहाँ पे, ओके? नाउ डिस्कसिंग द कोड। बेसिकली अगर हम किसी का टेबल लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम n into 1 करते हैं, n into 2 करते हैं, n into 3 करते हैं। The pattern that you can observe here is n is same but we have a value that's getting increased each time by 1. So the idea is कि हम यहाँ पे एक लूप लगा देंगे जिसमें हमारी इस की वैल्यू इंक्रीज होगी, बाकी हम इसको सेम रखेंगे। And that's why we chose to have a while loop and we have a multiplier here and n into multiply कर दे रहे हैं हम उसको। We are not changing the value of n. This is important. Please ये मत करके आ जाना कि तुम n equals to n star multiplier लिख दो। That's going to be wrong. फिर तुम्हारी n की वैल्यू चेंज हो जाएगी उससे। And then multiplier plus plus कर रहे हैं हम क्योंकि we have to increase it, नहीं तो ये infinite चला जाएगा। Fine. Should I move on to the next question? दीदी Yes, Dean. Yeah. Someone has a doubt. हाँ दीदी, एक्चुअली मैं थोड़ा डाउट इसी से रिलेटेड है, बट मैं नेम स्पेस स्टडी से है। नेम स्पेस स्टडी मुझे ये तो समझ आ गया हम क्यों यूज़ करते हैं कि हमें सी आउट सीन एक जगह है वहाँ से उठाने होते हैं इसलिए। बट दी जब मैं टर्बो में करती थी ना तब हम ये चीज़ यूज़ नहीं करते थे। तो ये कंपाइलर के लिए लिखते हैं या फिर ये सिंटैक्स है? यार टर्बो
तुम्हें पता है टर्बो कब बंद हुआ था? हाँ हाँ दी, मुझे पता है बहुत पुरानी हो चुकी है, बट हमें स्कूल में वही कराते थे। सो मेरा डाउट ये है कि जो नेम स्पेस एसटीडी है ये कंपाइलर के लिए सिंटैक्स, हर कंपाइलर की वजह से अलग है, या फिर ये मतलब यूनिवर्सल सिंटैक्स ही यही है? से यूनिवर्सल, इसलिए हम इसको यूनिवर्सली लिखते हैं ताकि हम यहाँ पे एसटीडी लिखना भूल जाएं। एंड बेसिकली टर्बो के टाइम nobody uses turbo anyone, everyone uses either हाँ uses दीदी, अब तो UG कोई यूज turbo भी नहीं or करता। ओके दीदी। तो वहाँ पे तुम नेम स्पेस एसटीडी यूज करते हो ताकि तुम्हें वो एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन सी आउट ना लिखना पड़े। ओके, सो लेट्स, और कोई डाउट्स हैं? Didi, if we take a multiply, if we take a multiplier greater than 10, then it won't accept, right? Then like yeah, obviously it won't Like accept 11. क्योंकि तुम Okay. हाँ So तब table of 11 can't be taken like in this case. नो इट कैन बी, लाइक मैं 11 का टेबल लिख सकती हूँ, 11 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स आई कैन राइट। Okay. If So you're when you say increasing that, I am taking n as an input from the user, right? वो तो कुछ भी हो सकता है। मल्टीप्लायर को तो मैं n into 1 करने के लिए यूज कर रही हूँ ना। ये देखो यहाँ okay, पे आ okay, गया 11। okay. ओके, एनीबडी Thank एल्स? D, what is the basic difference between if else and do while? यार if else तो स्टेटमेंट्स हैं एंड डू व्हाइल इज अ टाइप ऑफ अ लूप। हम डू व्हाइल बाद में करते हैं, अभी पहले व्हाइल देखते हैं And how क्योंकि do इट्स we ऑलरेडी decide which kind of loop we want to use? यार ये सब मैंने लास्ट के लिए बचा रखा है, प्लीज थोड़ा अच्छा, अभी okay. क्वेश्चंस पे कर लेते हैं। ओके, सो नाउ we'll do the collage sequence। किसी को पता है collage sequence क्या होता है? दी रिपीट करना नहीं है। collage, ओके, आई एम गेसिंग नहीं पता होगा। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, अगर तुम्हारा n इज इवन तो जो n है तो हम n को डिवाइड बाय 2 से इनिशियलाइज कर देंगे। अगर n इज ऑड तो हम इसको n इक्वल्स टू n स्टार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड ऐड 1 कर देते हैं। ये होता है, ठीक है, कोलाज सीक्वेंस में। और ये तब तक चलता है जब तक हमारा n इक्वल टू 1 ना हो जाए। समझ आया सबको कि क्या होता है कोलाज सीक्वेंस? पहले ये बताओ। Yes, दीदी. दोबारा प्लीज। ओके, तो रिपीट कर दो प्लीज। someone has a doubt? एक सेकंड बंद करना। हाँ, अगर हमारे पास एक नंबर है n और वो इवन है तो हम उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर n ऑड है तो हम उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड 1 कर देते हैं। सो और ये हम तब तक प्रोसीजर करते हैं जब तक हमारा n 1 के इक्वल ना हो जाए। सो नाउ सपोजिंग आई हैव n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 3 है मेरे पास, तो मैं 3 क्या है, 3 ऑड है तो मैं 3 n को 10 कर दूंगी because 3 into 3 plus 1 is 10. Then 10 is again 10 is even, तो मैं इसको डिवाइड बाय 2 करूंगी, Divide that's by 8। 3 plus 1 नहीं होगा? नहीं, वो सीक्वेंस का रूल ये है कि अगर वो इवन है तो वो डिवाइड बाय 2 है, अगर वो ऑड है तो मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 है। दैट्स द सीक्वेंस का लॉजिक। नाउ 5 इज अगेन ऑड, सो हम इसको अगेन वो करेंगे। ये 12 नहीं आना चाहिए फिर 3 into 3 plus 1 तो 16 इज इवन, तो 8 इज इवन। यार 3 into 3 plus 1 is 10। नहीं, वो 3 into I फिर mean, ब्रैकेट पे 3 plus 1 समझ रही है. अच्छा नो 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 3 into 3 फिर it's plus 1 okay fine yeah 3 square plus then 1 8 okay fine and then not 3 square, it's n into 3। यहाँ 2 पे and बस 1. हमने वो लिया 2 and 1। तो ये तो था 3 के लिए हमारा एग्जाम्पल। now let's take a shorter number, let's take a bigger number। 4 के लिए लेते हैं। 4 के लिए क्या होगा? 4 होगा, 4 is Divided by even। 2. यहाँ पे हम 2 and 3 रख 1. देते हैं इनिशियल।
फिर यहाँ पे 2 हो गया, 1 हो गया। तो 4 के लिए ये बनी हमारी सीक्वेंस। और 5 के लिए इफ यू कैन सी 5 की सीक्वेंस ऑलरेडी हमारे पास ऊपर वाले एग्जाम्पल से आ जाएगी। क्यों? क्योंकि 5 into 3 plus 1 is 5 into 16, then 8, then 4 and then 2. So is there ये some pattern that हमेशा you guys लास्ट can में observe मतलब over here? 4 2 1 ही बनेगा। हेलो, आपने क्या बोला? दी कोई भी सीक्वेंस में मतलब लास्ट में 4 2 1 या 2 1 ही आएगा लास्ट में। Yes, that's perfect. Basically, collapse sequence will always end with 4 to 1 if the number is greater than or equal to 3. And उसके बाद अगर 4 है तो simply 4 to 1 है, 2 है तो क्या होगा? 2 1 2 होगा, 1 and 1 है तो simply 1 होगा। ओके, तो हम एक गिवन नंबर से उसकी कोलैट सीक्वेंस लिखेंगे एंड इसके लिए हम while लूप यूज करेंगे। Now somebody had a doubt कि हम कब for loop यूज करेंगे, कब while loop यूज करेंगे। your answer gets your question gets answered here, because यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो तुम्हें n को डिफरेंट तरीके से अपडेट करना है, राइट? कभी तुम्हें n को हाफ करना है एंड कभी तुम्हें n को मल्टीप्लाई बाय 3 + 1 करना है। So the while loop will give you the flexibility to do this operation, whereas for loop में तुम उसके अंदर जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग एक सिंटैक्स लिखते हो जिसके अकॉर्डिंग वो अपडेट होते रहते हैं। Okay, got it. That's how you will use while loop here. So we'll say पहले हमारी कंडीशन थी कि 4 to 1 है। अगर if my n is equal to 1, I will simply see out 1, right? And अगर मेरी n equal to 2 है तो मैं simple see out दी हम यहाँ सेकंड में एल सिर्फ नहीं यूज करेंगे। और मैं use कर देती, but some people might not be knowing else if, that's why I'm just using the simplest syntax possible. सबको else if else if ladder आता है? Yes. हाँ जी, लास्ट Yes, हुआ था। last Okay. क्लास में वही हुआ था दी। अच्छा ठीक है, I don't know. तो else if कर दो यहाँ पे and then लास्ट केस में हम else कर देंगे where the number is greater than or equal to 3. So यहाँ पे हम एक while loop लिखते हैं। while now collapse sequence कब terminate होती है? जब वो equal N to 1 not हो जाए, equal to right? 1. n क्या? N not equal to 1. n not equal to, हाँ that's correct, n not equal to 1. and now firstly हम simply see out n कर देंगे क्योंकि हमें प्रिंट करना है कि हमारे पास अभी क्या वैल्यू है। नेक्स्ट में हम चेक करेंगे कि if n is even, तो even कैसे चेक करते हैं ये बताओ जल्दी से। Modulus 2 n equal to 0. N percentage percentage equal to 0। is equal to 0 0. and modulo 2 10% to equals to 0. हाँ that's correct, but चलो यहाँ पे equal to 0 लिख दो, but हम पहले चेक कर लेते हैं कि odd है क्या। तो n odd है। now ये अगर 1 होगा तो odd है, 0 होगा तो even है। तो odd है तो मतलब we have to do n equals to n start 3 plus 1 सिर्फ n परसेंटेज 2 से ऑड ही आएगा। हाँ n percentage 2 से odd आएगा because अगर if it's divisible by 2 तो इसका आंसर 0 होगा and 0 मतलब वो false हो जाएगी कंडीशन, right? Do you get what I'm समझ saying? नहीं आया। So we're doing this only because the answer can be either 0 or 1. Yeah. ओके यार जिसको समझ नहीं आया ना तो तुम इसको ऐसे ले लो। अब समझ आया? हाँ आ गया। else जो हमारा n है that will be equal to modulo sorry divided by 2 and ये देख रहे हो तुम जिसका डाउट था कि हम n को दो तरीकों से इनिशियलाइज कर पा रहे हैं, सॉरी अपडेट कर पा रहे हैं। and now let's run, actually you know you don't need this to, नहीं ठीक है यस चलो मैं यही बोलने वाली थी कि हमने ये 1 और 2 का केस अलग क्यों करा है। इसे तो मतलब कि नहीं जनरल केस बना नहीं सकते। 1 का तो यू नीड इट बिकॉज यहाँ पे नहीं तो तुम्हें फिर डू वाइल लूप यूज करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। और 2 का क्यों है फिर? 2 का तो नीचे हो ही जाएगा कवर अप। 2 का नीचे हो जाएगा, यू राइट, है ना? ओके दैट्स व्हाट आई वाज कमिंग टू।
दी 1 का क्यों किया है एक बार प्लीज बताओ। 1 का मैंने इसलिए किया है क्योंकि अगर n इक्वल टू 1 है तो ये वाइल लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, तो मैं ये सी आउट 1 नहीं कर पाऊंगी यहाँ पे, so we need a special case for that. समझ आया आपको? यस। ओके ठीक है, so let's just try printing it. In such question, we don't need to consider if the user enters negative or zero values. No, you यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यूज ही एंटर कर रहे हैं क्योंकि कोलैट सीक्वेंस 1 तक ही है। चलो एंड यहाँ पे देखो तुम्हारी सीक्वेंस आ गई 3 10 5 8। ओके वी आर नॉट गेटिंग 1 बिकॉज यहाँ पे 1 प्रिंट 1 नॉट इक्वल टू, तो लास्ट में हमें 1 प्रिंट करना पड़ेगा। Now you don't need this I think anymore. Let's try this. ओके हो गया। एंड जो लड़की बोल रही थी वो वाला पॉइंट भी ठीक हो गया कि एन का जनरलाइज्ड केस हो गया। एनी डाउट्स? ठीक है लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तुम लोगों को ये क्वेश्चन करना है या फिर मैं रहने दूँ अगर ज्यादा हो गया तो? वो दिखाओ नहीं स्क्रीनशॉट। करवा दो। इट्स द स्टार पैटर्न प्रिंटिंग वाला क्वेश्चन करना है। प्लीज एक बार वो दिखा दो कि वो अपने कोलैब सीक्वेंस का। थैंक यू दी। करना है क्या ये एवरीवन? यस दी करा दो। आवाज ही दी थी। ओके सो दिस इज बेसिकली तुम लोग ये पहले पैटर्न देखो। पैटर्न देख लिया सबने क्या हो रहा है यहाँ पे? अगर 3 है तो मैं 3 स्टार्स प्रिंट कर रही हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट, एंड हर एक रो में उस रो नंबर के इक्वल उतने स्टार्स हैं। लाइक दिस इज द फर्स्ट रो, सो वी हैव 1 स्टार, सेकंड रो में 2, थर्ड रो में 3 4 ऐसे है। ठीक है तो हम ये कैसे करेंगे? गिवन एनी रैंडम एनी पॉजिटिव इंटीजर बाय द यूजर। दी एक बार ये वाइल लूप एक बार लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर देते हैं। यार मैं लास्ट में ये लूँ बिकॉज नहीं तो हम वी आर ऑलरेडी ओवरशॉट ऑफ टाइम। वाइल लूप कौन सा? इस वाले प्रोग्राम का? हाँ जी दी कि कब उसके बाद कौन सी स्टेटमेंट मतलब ओके आई विल ट्राई रन दिस। तो हमने इस एग्जांपल में 3 लिया था, तो पहले 3 नॉट इक्वल टू 1 हुआ तो ये वाइल लूप एग्जीक्यूट हो गया। अंदर गए हमने n प्रिंट किया विच इज 3 हियर राइट नाउ। नेक्स्ट वी चेक्ड इफ इट इज ऑड, बिकॉज अगर किसी चीज का मॉड्यूलो 2 ऑड 1 है तो दैट्स ऑड, and then if it's odd then we updated the value of n as followings। तो यहाँ पे इसके अपडेट के बाद ये 10 हो गया, else में हम नहीं गए क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो गया था, and we come back to this statement। now 10 again is not equal to 1, so we print 10 and then we check if it's odd, if it's not odd so we move on into the else। and अब हमने इसको हाफ कर दिया राइट, हाफ करा, फिर हम वापस ऊपर गए 5 था अभी हमारे n की वैल्यू, तो 5 नॉट इक्वल टू 1 है, हमने फिर 5 प्रिंट कर दिया। फिर हमने चेक किया 5 इवन है कि ऑड है, इट्स ऑड, एंड देन वी अगेन अपडेटेड n एज फॉलोइंग, एंड देन फिर हम एल्स में नहीं जाएंगे, ऊपर वाइल में गए एंड वी रिपीटेड दिस प्रोसेस टिल इट्स 1। क्लियर हो गया अब? ओके गॉट इट। एंड जब 1 हुआ तो हमने लास्ट में प्रिंट कर दिया 1 को। ठीक है नाउ लेट्स गो ऑन टू द पैटर्न क्वेश्चंस। तो अगर तुम्हें दिख रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, जितना हमारे पास n है उतने नंबर ऑफ रोज तो हमें प्रिंट ही करने हैं, एंड हर एक रो में जो उस रो नंबर है उतने नंबर ऑफ स्टार्स प्रिंट करने हैं राइट।
So basically the user is entering the number of rows that you want, and hence you would have a loop which will run the number of times the user has entered. So हम एक variable ले लेते हैं initial I, which will be the num rows. वो हम n से initialize कर लेते हैं. Someone please mute yourself. तुम्हारे background noise आ रही है. Okay. Now while num rows is greater than 0, we will do certain tasks, right? नहीं, इसको तुम 1 ही ले लो, ज़्यादा बेटर रहेगा. ऐसे देन इक्वल टू n तक करने हैं हमें ये काम. एंड नाउ ये काम हम हर रो के लिए करेंगे 1 2 3 ऐसे, जो ये स्टार प्रिंटिंग वाला है. एंड हर रो में उसके नंबर ऑफ रोज जितने स्टार्स हैं. सो नम ऑफ स्टार्स करेंगे हम. नम स्टार्स कितना होगा? नम रो के इक्वल, राइट? एवरीबॉडी गेटिंग दिस कि हर रो में उस रो नंबर जितने स्टार्स हैं, है ना? या then we will simply be printing the number of stars. Sorry, I wrote start instead of stars. जो number of stars है वो कितने कब तक प्रिंट करेंगे? जब तक वो greater than zeros है. See out num stars. Sorry, star print कराना था. I wrote that. The greater than 0 क्यों किया, ये समझ नहीं आया. एक सेकंड बताती हूँ. एंड हम माइनस माइनस नम स्टार्स कर देंगे. एंड हर बार हम नंबरों को इंक्रीज कर देंगे. तो Can we write it in the same while loop using /n? क्या someone you're not audible जिसने भी अभी कुछ बोला. /n यूज करके भी तो कर सकते हैं ना. स्लैश एन यूज करके क्या कर सकते हैं? जैसे पहले 2 स्टार्स को प्रिंट करो फिर यार थोड़ा जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी. पहले 2 स्टार्स को प्रिंट करा फिर /n फिर 3 स्टार्स को प्रिंट कर देंगे. ओके. एंड हाउ वुड यू नो किस लाइन में कितने स्टार्स प्रिंट करने? यू गेटिंग माई पॉइंट? लाइक हम ये n यूजर से इनपुट करा रहे हैं, खुद से नहीं कर रहे. बट इन जावा वी कैन राइट system.out.print फिर 2 times stars /n 3 times stars, तो वो भी सेम. Dude, that's Java. वो तो तुम Python में भी कर सकते हो. We are discussing C++ and while loops here now. C++ में नहीं कर सकते आप ये. हेलो. हाँ दी, समझ गई. ये greater than 0 बता दो. हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली जो फर्स्ट हम स्टार्टिंग से समझते हैं इसको. मैंने यूजर से इनपुट लिया नंबर ऑफ रोज, एंड जो फर्स्ट रो नंबर है उसको इनिशियलाइज कर दिया 1 से. एंड आई विल बी चेकिंग कि वो यूजर के डाली हुई वैल्यूज से मतलब कम ना होते रहे. बेसिकली माई लॉजिक इज हर रो में मेरे पास कुछ रोज हैं. उन रो के अकॉर्डिंग जो भी उस रो का रो नंबर है मुझे उतने स्टार्स लगाने हैं. सो जब यहाँ पे मैं आती हूँ तो मैं नम स्टार्स को नम रो के से असाइन कर देती हूँ. तो पहले ये 1 से असाइन हो गया. मैंने नम स्टार्स ग्रेटर देन 0 इसलिए किया है ताकि, और मैं नम स्टार्स माइनस माइनस यहाँ पे कर रही हूँ, मतलब कि हर एक आइटरेशन में उतने ही स्टार्स प्रिंट होंगे जितना नंबर ऑफ रोज है उसका. अगर ये 3 होता तो मैंने पहले 3 है तो मैंने एक बार स्टार प्रिंट किया, इसको 2 कर दिया नम स्टार माइनस माइनस से. फिर 2 इज ग्रेटर देन 0 तो ये यहाँ पे 1 हुआ. सॉरी, यहाँ पे स्टार प्रिंट हुआ, फिर यहाँ पे नम स्टार माइनस माइनस हुआ तो 1 हो गया. ऐसे करते करते ये 3 स्टार्स प्रिंट कर दिए इसने. नहीं समझ आया. नहीं समझ आया. फिर अपन ने नंबरों प्लस प्लस क्यों किया लास्ट में? माइनस माइनस क्यों किया? ये एक बार प्लीज स्टार्ट में समझा दो. एक बार ही स्टार्ट लास्ट ठीक है. तुम लोग ये नीचे से देखो. इस पैटर्न में देख रहे हो तुम, यहाँ पे फर्स्ट रो में कितने स्टार्स हैं? 1 है, राइट? और इसका मैंने रो नंबर 1 लिखा है. ठीक है. इमेजिन दिस इज रो नंबर 1, दिस इज रो नंबर 2 एंड दिस इज रो नंबर 3. सेकंड रो में कितने स्टार्स हैं? 2. थर्ड रो में 3.
So the number of stars in each row is equal to that row number, right? Yes. है ना? तो हम Yes, क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे पहले, क्योंकि हमें स्टार्टिंग रो नंबर 1 से करनी है, तो हम 1 से इनिशियलाइज कर दे रहे हैं। फिर हम यहाँ पे नम रो प्लस प्लस इसलिए करेंगे क्योंकि हमें n रोज प्रिंट करनी है। एवरीवन इतना समझ आया सबको? ये बीच का पार्ट छोड़ दो। यस दी, इतना आ गया। हमने हाँ हमने n रोज प्रिंट करनी है, 1 रोज से लेकर के n तक। नाउ अभी ईच रो विल हैव नम स्टार्स, मतलब कितने नंबर ऑफ स्टार्स होंगे जो उसका रो नंबर है। दैट्स राइट। नाउ मैंने अभी एक्सप्लेन किया, हाँ जी। है ना? Yes. उतने नंबर ऑफ स्टार्स है जितना उसका नंबर ऑफ रो है, तो इसलिए हमने नम स्टार्स को नम रो से इनिशियलाइज किया। एंड देन जो ये वाइल लूप है, ये इसलिए क्योंकि हमें उतनी बार उस स्टार को प्रिंट करना है। हो गया? सबको समझ आया ये? हाँ जी। यस दी, आ गया। लास्ट में हमने दी एंटर ये while loop वाला एक बार पार्ट दोबारा बता दो, num star माइनस माइनस। नम स्टार माइनस माइनस इसलिए किया क्योंकि हमने स्टार्टिंग में उसको जो नंबर ऑफ रोज है उससे इनिशियलाइज किया है। तो अगर फर्स्ट रो है तो उसमें नम स्टार्स 1 है, तो 1 स्टार आएगा। तो हर बार हम कैसे पता लगाएं कि मतलब उसको डिक्रीमेंट करेंगे ना, कि हमने 1 स्टार प्रिंट कर दिया तो अब डिक्रीज कर दो। एंड ये तब तक करेंगे जब तक हमारे पास कितने स्टार्स, मतलब तब तक करेंगे जब तक हमें हमारे नंबर ऑफ स्टार्स 0 ना हो जाए। दी, अगर मैं नम स्टार्स माइनस माइनस की स्टेटमेंट ना लिखूं तो नीचे तो नंबरो प्लस प्लस हो रहा है, और जब वो वापस लूप की तरह ऊपर वाली स्टेटमेंट पे आएगा, वापस नम स्टार्स की वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी नंबरों वाली नई वैल्यू। तो नम स्टार्स की नीड क्या है माइनस डिक्रीमेंट होने की? यार डिक्रीमेंट इसलिए कर रहे हैं ना ताकि हम स्टार्स का काउंट कर पाए। दी आप एक कोई वैल्यू लेके बता दो। एक सेकंड, तुम ये छोड़ो। संस्कृति, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ? सो सॉरी बट वो थैंक यू सो छोड़ो। मच। अगर अगर इफ आई टोल्ड यू टू प्रिंट 5 स्टार्स, तो तुम कैसे करोगे? 5 स्टार्स प्रिंट करने हैं, कैसे करोगे? तुम एक नंबर ले लोगे, इंट i इक्वल्स टू 5 ले लो, एंड जब तक वो i ग्रेटर देन 0 होगा तुम आउट स्टार कर दो, एंड i माइनस माइनस कर दोगे। इससे 5 स्टार्स प्रिंट करना सबको आ गया? कैसे प्रिंट होंगे 5 स्टार्स? Let me run it for you. पांच स्टार्स प्रिंट हो गए, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे 4 स्टार प्रिंट करना है, मैं सिंपली यहाँ की आई की वैल्यू बदल दूंगी 4 से, तो मेरे पास 4 स्टार्स आ गए, राइट? यू गेटिंग इट? सो आई वांट टू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी कि मैं जो मैं चाहूँ उसके हिसाब से मैं ये स्टार्स प्रिंट करा पाऊँ। तो मैं इस केस में मैंने सिंपली आई की जगह नम स्टार्स ले लिया यहाँ पे अच्छा ठीक है दी, एंड्रॉइड आ गया समझ, आ गया। यहाँ पे, और मैं उसको उस नंबर ऑफ रोज से इनिशियलाइज कर रही हूँ क्योंकि हर रो में एक हाँ फिक्स्ड जी, नंबर ऑफ समझ आ स्टार्स। गया। आई होप एवरीवन गेट्स इट नाउ। हाँ जी, थैंक यू। ओके कूल। सो लेट्स सी कि ये चलेगा कि नहीं। 6 लेते हैं इनपुट। कूल, सो वी गेटिंग अ पैटर्न एंड वी कैन सी ये सही हो। ठीक है। एक सो बार क्वेश्चंस दिखा दो ना। क्वेश्चंस कौन से जो मैंने अभी अभी कराया हाँ है? हाँ जी। ये लो। हो गया। Now let's move on to do while loop. यार honestly do while, anything that you can do with while you can also do with do while, तो इसका as such मैंने तो कभी यूज नहीं किया है, but since it's there, it's a part of the दी, language, we will learn it. उसका हाँ कोड दिखा दोगे स्टार्स वाले का? एक बारी स्क्रीनशॉट ले लूंगी। थैंक यू। so let's just we'll do this real quick. do while loop similar to while expression, but ये यहाँ पे क्या होता है, while नीचे से start होगा, मतलब while something is true you will do something, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है डू की, वो तो एग्जीक्यूट होगी ही हमेशा,
एक बार एग्जीक्यूट होगी, फिर उसके बाद जो हमारी बूलियन एक्सप्रेशन है वो चेक होगी। ठीक है, प्लीज रीड द स्लाइड ऑन योर ओन, आई वेट फॉर अ मिनट। ओके, अब इससे बेटर समझ आएगा। अगर तुमने वाइल लूप देखा होता तो उसमें ध्यान से देखा होता तो उसमें हम पहले ही स्टेटमेंट को चेक करते हैं, मतलब एक बूलियन एक्सप्रेशन को चेक करते हैं, अगर वो ट्रू होता है तो एग्जीक्यूट करते हैं। इन अ डू वाइल लूप पहले जो तुम्हारी स्टेटमेंट है तुम उसको एक बार तो एग्जीक्यूट कर लोगे, फिर तुम बूलियन एक्सप्रेशन को देखोगे। इफ दैट boolean expression is true then you will return back and execute the statement जो भी तुम्हारी बॉडी में है, अगर नहीं तो false। तो जो do while loop है it gives you the flexibility to have at least one statement executed। जैसे वो हमारा जो कोलैप्स वाला एग्जांपल था उसमें n नॉट इक्वल टू जब 1 था तो वो एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, बट वही चीज अगर हम डू वाइल लूप में लिखते थे और n इक्वल टू 1 होता तो वो हम वहाँ पे पहले ही हम सी आउट कर देते हैं, फिर हम चेक करते हैं वाइल में। सो दिस वाज द फ्लो चार्ट एंड ये हम एक एग्जांपल है, सेम वही पहले वाला एग्जांपल है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है। तो i इक्वल्स टू 1 है, हमने पहले ही प्रिंट कर दिया विदाउट चेकिंग कि इफ i इज लेसर देन 0 तो 0 प्रिंट हुआ। फिर वो चेक करते हैं कि 0 लेस देन 5 है क्या, हाँ है, फिर उसने फिर वापस किया एंड फिर यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे प्रिंट हो गया। सो बेसिकली इसका नेक्स्ट पार्ट है कि ये अगर इसमें अगर i इक्वल टू 6 होता तो भी एक बार 6 तो प्रिंट हो ही जाता। क्या i इक्वल्स टू 6 प्रिंट होता? नहीं, 6 नहीं प्रिंट होता, 5 तक ही प्रिंट होता फिर। नहीं, अगर दीदी स्टार्टिंग में ही अपन अगर 6 रख दे i इक्वल टू 6, हाँ तब एक बार वो 6 प्रिंट हो जाएगा। एग्जैक्टली, या यू राइट। सो द थिंग इज कि तो फिर हम अगर ये ऐसा कुछ ऐसा अजीब सा लॉजिक है इसका, तो हम इसको यूज कब करेंगे डू वाइल लूप को? So the thing is कि we will use a do while loop whenever a user wants an input in a certain format. Obviously there are more ways where you would use do while, but एक common way है कि मैं चाहती हूँ कि एक user किसी चीज को एक particular format में input दे, and अगर उसने उस format में input नहीं दिया तो मैं चाहती हूँ कि मैं बार बार उससे वो काम करवाती रहूँ। तो जैसे तुम कभी अगर कोई फॉर्म भर रहे हो और तुम्हें कोई किसी फॉर्मेट में इनपुट देना है एंड तुमने उसमें नहीं दिया तो इट विल आस्क यू टू डू इट अगेन। और वो कैसे करेगा कि तुमने पहली स्टेटमेंट में एक इनपुट दे दिया, ठीक है, अगर वो इनपुट करेक्ट है तो वो हम हट जाएंगे, बट यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर्मेट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट मतलब तुमने गलत फॉर्मेट में दिया, तो ये सही हो गया तो तुम्हें वापस इनपुट देना पड़ेगा। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस लॉजिक। तो या दैट्स ऑल अबाउट इट। मैंने while and do while कंप्लीट कर दिया। नाउ ओवर टू रिया फॉर एक्सप्लेनिंग यू स्विच केसेस। So we will be starting with the switch case statement. मेरी आवाज आ रही है? Yes, दी। हाँ। Yeah. तो बेसिकली स्विच केस है क्या? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो तुम किसी मॉल में गए हो और तुम्हें कोई अपनी फेवरेट ड्रेस लेनी है। तुम घर से सोच के गए हो कि भाई मेरे को तो ये वाली ड्रेस चाहिए, और मॉल में मतलब उस शॉप के पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि भाई हमारे पास ये ड्रेस है, इनमें से तुम सेलेक्ट कर लो। जो तुमने ड्रेस सोची है अगर वही सेम ड्रेस वहाँ पे है तो तुम उसको लेके आ जाओगे, और अगर नहीं है तो तुम घर वापस आ जाओगे। तो स्विच केस यही है बेसिकली कि अगर तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो तुम यूज करोगे स्विच केस स्टेटमेंट। हम एक एग्जांपल देखते हैं।
जैसे इंट डे, ये हमने कोड स्टार्ट किया, इंट डे इक्वल्स टू 5। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का, जिसकी वैल्यू इनिशियलाइज क्या कर दी 5। अब हम स्टार्ट करते हैं स्विच केस। हमें इसमें क्या करना है, बेसिकली हमारे पास ये केसेस अवेलेबल हैं, 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट केसेस अवेलेबल हैं, और एक केस है जो यूजर ने एंटर किया है, मतलब मैंने एंटर किया 5। इसको ड्रेस की तरह मान लो कि तुम्हें चाहिए 5 नंबर वाली ड्रेस जो तुम घर से सोच के गए हो, और ये जो ड्रेसेस हैं ये उनके पास अवेलेबल हैं, और तुम्हारी चॉइस है 5 और वहाँ पे भी है 5। तो ये कैसे चलेगा? सबसे पहले हम लिखेंगे स्विच स्टेटमेंट। ब्रैकेट के अंदर हमेशा हम वेरिएबल नेम लेंगे जो यूजर ने डिक्लेयर किया है। यहाँ पे यूजर ने कौन सा वेरिएबल नेम डिक्लेयर किया है? डे। तो स्विच डे। फिर अब जाएंगे केस पे, केस 1। अब ये देखेगा 1 5 के इक्वल है, नहीं, नेक्स्ट केस पे मूव हो जाएगा। मतलब ये कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा, अभी ये बस चेक कर रहा है कि जो यूजर ने एंटर किया है और जो हमारे पास केसेस अवेलेबल हैं, मतलब जो ड्रेस तुम्हें चाहिए और जो ड्रेसेस वहां पर हैं, अगर वो मैच हो रही है तो ही तुम लोगे ना, नहीं तो वैसे तो तुम नहीं लोगे। तो हमने देखी पहली ड्रेस, केस 1, 1 इक्वल्स टू 5, नहीं, नेक्स्ट केस पे जाएगा। केस 2, 2 इक्वल्स टू 5, नो। थर्ड केस पे 3, 3 इक्वल्स टू 5, नहीं। फोर्थ पे 4 इक्वल्स टू 5, नहीं। 5, चलो भाई तुम्हारी ड्रेस मिल गई तुमको। तो इसके बाद वो क्या करेगा? सी आउट, मतलब तुम्हारा केस मैच हो गया। अब इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे इसके अंदर मैंने क्या प्रिंट कराया? सी आउट फ्राइडे, तो ये फ्राइडे यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ब्रेक, अब ब्रेक कीवर्ड क्या होता है? ब्रेक कीवर्ड होता है कि तुम्हें जैसे अगर कहीं भी तुमने ब्रेक कीवर्ड लगा दिया तो उसके बाद जो जितने भी केसेस हैं या उसके बाद जो भी लिखा हुआ है वो कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो वहीं से रिटर्न हो जाएगा। मतलब हमें कोई मतलब नहीं है कि केस 6 में क्या है, 7 में क्या है। तुम्हें तुम्हारी ड्रेस मिल गई ना, उसके बाद तुम्हें क्या करना आगे जाके कि और ड्रेसेस क्या थी या नहीं थी। तो तुमने लाइन बाय लाइन चेक करे सारे केस, तुम्हारा केस मैच हुआ, उसके बाद जो उसके अंदर लिखा था वो एग्जीक्यूट हो गया, एंड देन ब्रेक। ब्रेक मतलब बाहर आ गए उससे। ये केसेस यहाँ पे जो भी लिखा है कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिंटेक्स देखते हैं, किसी को कोई डाउट है इसमें? हेलो, हाँ, तो सिंटेक्स देखते हैं। स्विच एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में वही जो यूजर ने वेरिएबल नेम डिक्लेयर किया है, जैसे यहाँ पे डे लिखा है, यूजर ने डे डिक्लेयर किया था, तो स्विच एक्सप्रेशन। फिर हम लिखेंगे केस एक्स, मतलब यहाँ पे वो वाली वैल्यूज आएगी जो वेरिएबल नेम का डेटा टाइप है। मतलब डे का डेटा टाइप क्या है? डेटा मतलब ये किस तरह का डेटा एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे हमने इंट डिक्लेयर किया, इंट मतलब ये इंटीजर डेटा लेगा। तो जो इसका डेटा टाइप है, केस के बाद वही वाली वैल्यू आएगी। अगर यहाँ पे मैं फ्लोट लेती, फ्लोट डे, फ्लोट वैल्यूज वो होती है जो डेसिमल एक्सेप्ट करती है, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है केस 1.1 या फिर जो भी तुम्हें लिखना है डेसिमल में। ये फ्लोट में 1 को 1.0 लिखना कंपल्सरी होगा? नहीं, फ्लोट बेसिकली डेसिमल वैल्यूज एक्सेप्ट करती है ना, तो तुम 1.01 1.00 तुम्हें डेसिमल ही लिखना पड़ेगा। तुम इंटीजर नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पे हमने इंटीजर लिखा है ना, तो हम यहाँ पे 1 ले रहे हैं। अगर हम फ्लोट लेते तो हमें पॉइंट लगा के, एक सेकेंड, हाँ, 1 पॉइंट समथिंग हमें कुछ भी लिखना पड़ता। नहीं दीदी, अगर उसमें से अपन को 1 ही केस लेना हो तो 1.0 लिखना है, फिर 1 से भी चल जाएगा फ्लोट में? नहीं, अगर तुम फ्लोट ले ही रहे हो तो फ्लोट का मतलब ही क्या है कि तुम्हें डेसिमल वैल्यूज चाहिए, तो तुम्हें ऑब्वियसली डेसिमल वैल्यूज ही एक्सेप्ट करानी पड़ेगी ना यहाँ पे। तो फर्स्ट केस आया, हाँ, कहाँ थी मैं? केस एक्स, तो यहाँ पे हम डेटा टाइप लेंगे। फिर अगर ये केस मैच हुआ, जो यूजर ने डाला था 5 था, यहाँ पे यूजर ने डाला 5, ये 1 नहीं मैच हुआ तो नहीं चलेगा। और अगर ये केस मैच हो गया तो यहाँ पे जो भी कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और फिर वहीं से ब्रेक, ब्रेक मतलब उसके बाद का जो भी लिखा है कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहीं से वो रिटर्न हो जाएगा कोड।
किसी को कोई डाउट इसमें? No, दी। हाँ, सो यही बता रहा है कि when C++ reaches a break keyword, it breaks out of the switch block. तो जैसे यहाँ पे हमारी ड्रेस नंबर थी 5, हमें ड्रेस मिल गई, ब्रेक मतलब हम बाहर आ गए, अपने घर चले गए। हाँ, एग्जीक्यूशन टाइम कोई बता सकता है क्या होता है? The total time to execute the program. कितनी देर में कोड एग्जीक्यूट हुआ? हाँ, सो ब्रेक कीवर्ड क्या करता है, हमारा जो एग्जीक्यूशन टाइम है उसको सेव करता है। तो कैसे, मतलब अगर यहाँ पे ब्रेक ना होता तो ये और केसेस को भी चेक करता, जिसकी कोई नीड नहीं थी, क्योंकि हमें तो हमारी ड्रेस मिल गई ना। तो इसलिए ब्रेक कीवर्ड हमने लगाया, तो ये और आगे नहीं जाएगा, इससे हमारा जो टाइम है वो सेव होगा और हमारा कोड जल्दी चलेगा। हम इसको एक बार कंपाइलर पे, मैं दिखाऊं कंपाइलर पे करके इसको? हेलो, जी आ गया समझ वैसे। आ गया दीदी। हाँ, अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखती तो कोई बता सकता है क्या होता? जी, तो सारे फॉर cases check एग्जांपल होते हैं। अगर केस 3 वाला मैच हो जाता तो सारे आ जाते हैं। क्या? जैसे फ्राइडे सैटरडे सबसे सारे नीचे के स्टेटमेंट्स भी चेक होते हैं। जहाँ से वो करेक्ट आ जाता उसके नीचे से आने लग जाते सारे आउटपुट्स। नहीं दी, आंसर तो सेम होगा ना, हमने फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग केस 3 में मैच हो गया तो केस 4 केस 5 दोनों के आउटपुट आएंगे। यार मेरे को ना तुम्हारी वॉइस आ नहीं रही है बिल्कुल भी। दी सारे केसेस चेक होते हैं और सारे ट्रू वाले एग्जीक्यूट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर केस 3 का चेक हुआ और वो ट्रू हुआ तो केस 4 केस 5 के भी आउटपुट्स आएंगे। नहीं आएंगे। सारे केस चेक होंगे और जो सही होंगे सारे आएंगे ऐसा। हाँ, अगर ब्रेक कीवर्ड नहीं होगा तो सब कुछ ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार इसको। ये दिख रहा है? यस दी। हाँ, तो रिया दीदी। The Aditi Di is asking you to admit her in the class. ओह, अच्छा, कहाँ है अदिति? यहाँ पे तो कुछ नहीं आ रहा। Di, I'll ask her to send the request again. हाँ हाँ, बोल दो। अब हम देखते हैं, एक बार इसको थोड़ा \n लगा देते हैं, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगा। हाँ, देखो जैसे आई है दीप्ति दी। Is my voice audible? Yes, yes, तो देखो यहाँ पे हमने क्या करा, डे वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का, हमने डिफाइन कर दिया 1। अब ये जाएगा स्विच के अंदर, स्विच डे केस 1। हाँ, इसको केस 1 मिल गया, इसने हाई प्रिंट कर दिया यहाँ पे देखो, पर इसने हाई के साथ हेलो भी प्रिंट किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड लगा ही नहीं था। अगर ब्रेक कीवर्ड नहीं होगा तो इसके यहाँ पे तो मैंने 2 ही केस लिए हैं, अगर इसके नीचे और भी केसेस होते तो सारे के सारे प्रिंट हो जाते। तो ये एडवांटेज है हमारा ब्रेक कीवर्ड यूज करने का। उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि
कि वो केस मैच है या नहीं है। जैसे 2 तो 1 के इक्वल नहीं है ना, पर फिर भी वो एग्जीक्यूट हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड था ही नहीं। कंपाइलर उसको पहला, जहाँ पे उसको पहला मैच मिलेगा, उसके बाद के जितने भी केस होंगे वो सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। मान लो मैं यहाँ पे 1 की जगह लिख देती 2, तो अब इसको पहला मैच कहाँ पे मिलेगा? 2 पे। तो 2 के बाद जितने भी केसेस होंगे, देखो 2 पे हेलो था, और मैं इसके आगे अगर एक और केस लिखती, केस 3, तो इसके बाद जितने भी केसेस होते सारे एग्जीक्यूट हो जाते। देखो हेलो हाय, तो बस यही है ब्रेक कीवर्ड यूज करने का फायदा, कि जहाँ पे हमें हमारा मैच मिल गया उसके बाद से वो रिटर्न हो जाएगा, उसके बाद वो चेक नहीं करेगा आगे। अदिति दी आ रही है या मैं कंटिन्यू करूं? Devi asked her, but she didn't दी एक reply बार वो yet. स्लाइड दिखा दीजिएगा जहाँ आपने आउटपुट लिखा था। ये हाँ दी, 1 मिनट। दी समझ नहीं आया, ये एक बार आउटपुट बताना कैसे आया है। अच्छा, एक सेकेंड। क्या कि ब्रेक कीवर्ड का समझ नहीं आया, या फिर कुछ भी स्विच केस में कुछ भी समझ नहीं आया? ब्रेक कीवर्ड वाला। अच्छा ठीक है, तो हम ले लेते हैं तुम्हारी ड्रेस। हाँ, तो मैं कह रही थी कि जैसे यहाँ पे यूजर ने क्या डिक्लेयर किया, 2 डिक्लेयर किया है ना। तो अब ये देखेगा केस 1, 1 इक्वल्स टू 2 नहीं, केस 2, 2 इक्वल्स टू, कोई आया था ना अभी, मुझे लगा दिखती आई है। Yeah, it was me. Sorry, I got disconnected and वो पता नहीं क्या stupid सा error आ रहा था। नहीं नहीं, इट्स ओके। हाँ, तो यहाँ पे वो देखेगा केस 2, 2 मैच है। हाँ, उसके बाद वो क्या क्या प्रिंट करेगा, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा। पर हमने यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड नहीं लगाया। ब्रेक कीवर्ड क्या करता है, ब्रेक जहां भी तुम्हें ब्रेक कीवर्ड दिख गया, ये समझ जाओ कि बस वो वहीं से रिटर्न कर जाएगा। रिटर्न मतलब उसके बाद की जो भी स्टेटमेंट होगी वो कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगी, बस यहीं से वो रिटर्न कर जाएगा। तो अब अभी ब्रेक कीवर्ड जब तक नहीं था तो ड्रेस 3 भी प्रिंट हो रही थी। जब मैंने ब्रेक कीवर्ड लगा दिया तो बस हमें अपनी ड्रेस मिल गई जो हमें चाहिए थी, सेकंड वाली, और वो वहीं से रिटर्न हो गया। फिर वो थर्ड केस या फिर इसके नीचे जितने भी केसेस होंगे किसी पे नहीं जाएगा। अच्छा ठीक है दीदी, समझ आ गया। किसी को कोई डाउट इसमें? नो दी। अब एक और लास्ट कीवर्ड देखते हैं, डिफॉल्ट कीवर्ड। दीदी हाँ जी। मुझे बस एक डाउट है, वो मुझे पहले भी आता था। अगर हम लोग ब्रेक नहीं लगाएंगे एंड हमने इंट डे इज इक्वल टू 1 लिखा तो तीनों केसेस का आउटपुट आएगा। बट अगर मैं इंट डे इज इक्वल टू 2 लिखूँ, ब्रेक ना लगाऊं, तो क्या 1 का भी इनपुट आउटपुट आएगा, फिर 2 और 3 का ही आएगा बस? यही तो बताया था मैंने अभी। देखो ना, इसमें मैंने 2 लिखा हुआ है, इंट डे इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले तो ये क्या करेगा, केस तो मैच करेगा ही ना। मतलब जो तुम्हें ड्रेस चाहिए उस ड्रेस पे तो तुम जाओगे ही ना, है ना। हाँ, तो तभी तो ये हुआ कि अगर हमने नहीं लगाया ब्रेक कीवर्ड तो पहला जहाँ पे उसको फर्स्ट मैच मिलेगा, मतलब मैच तो होना ही चाहिए। मैच होने के बाद के जो वो है जितने भी केसेस, वो सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे ड्रेस 2 और ड्रेस 3 दोनों आ गई। इज इट क्लियर नाउ?
Yes, Di. हम्म किसी को इसके सिंटेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं दीदी, नहीं जी। और इस कोड में? नो, नो दी। इट्स क्लियर। ओके हाँ, तो ब्रेक कीवर्ड कैन सेव अ लॉट ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम, ये मैं बता चुकी हूँ। हाँ, डिफॉल्ट डिफॉल्ट मैंने अभी बताया कि Di, I'm sorry to disturb you, but can you just tell us how long will this class go on for? हाँ, बस ये लास्ट है डिफॉल्ट, इसके बाद नेस्टेड इफ 5 minutes मोर। Okay, thank you. ओके हाँ, सो डिफॉल्ट कीवर्ड बताया मैंने अभी कि जैसे मान लो तुम्हें तुम्हारी ड्रेस नहीं मिली तो तुम क्या करोगे, घर वापस आ जाओगे। सेम है डिफॉल्ट कीवर्ड कि अगर कोई भी केस मैच नहीं हुआ, ये वाला एग्जांपल देखो, हमारा यूजर ने क्या इनपुट किया था 4, हमारे पास केसेस क्या क्या है 6 और 7। मान लो कि ये तुम्हें ड्रेस नंबर चाहिए थी 4 और जो शॉप है उस पे कौन कौन सी ड्रेसेस अवेलेबल है 6 वाली और 7 वाली, तो ये तो कुछ मैच नहीं हुआ। तो तुम क्या करोगे, डिफॉल्ट केस मतलब तुम अपने घर वापस आ जाओगे। तो यही है डिफॉल्ट केस, अगर कोई भी केस मैच नहीं हो रहा तो वो जाएगा डिफॉल्ट केस के अंदर। डिफॉल्ट में जो भी लिखा है उसको प्रिंट करा के अपने घर मतलब बाहर आ जाएगा कोड से। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड, हमने 4 एंटर किया, 6 इज नॉट इक्वल टू 4, 7 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 4। सो डिफॉल्ट केस में गया, जो भी यहाँ पे लिखा था लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड प्रिंट हुआ और वापस आ गया। इसको किसी को इसमें कोई डाउट डिफॉल्ट में? नो दीदी, डिफॉल्ट नो में एंटर करना पड़ेगा दी जैसे डिफॉल्ट के बाद ब्रेक नहीं लिखते? नहीं, डिफॉल्ट के बाद नहीं क्योंकि डिफॉल्ट तो आखिरी केस है ना, उसके बाद ब्रेक लिखने का फायदा क्या है, लिखना है तो लिख लो, पर फायदा क्या है, उसके बाद तो वो बाहर आना ही है। दी Be the default case will only run when there's no matching of the cases, right? हाँ, when there is no match it will only run after we also have to pass the value of which whatever we want to write in output, like जो no, you can ask from the user, जैसे यहाँ पे मैंने declare कर ही दिया int day equals to 4, you can also write int day and then c in day, so the in count, हाँ in count I'm asking कि we have to write whatever we want to print in output in default from default? हाँ, ये हमें लिखना पड़ेगा। Okay. नहीं तो फिर वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा ना, अगर तुमने कुछ लिखा ही नहीं है तो फिर वो उस केस में जाके कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, ब्लैंक प्रिंट हो जाएगा। और I think it would be more nice if we write return 0. अभी दीदी ने बताया था ना कि कई बार मतलब एग्जामिनर्स पूछ लेते हैं कि रिटर्न 0 क्यों नहीं लिखा। हाँ, बट स्विच केस हाँ लिख सकते हैं, बट इसमें कोई जरूरत नहीं है ना अभी रिटर्न 0 की, क्योंकि इसमें तो हम केसेस पे जा के देख रहे हैं ना, जो केस के अंदर लिखा है वही एग्जीक्यूट होगा। ओके दीदी। हाँ, सो डिफॉल्ट कीवर्ड में किसी को कुछ पूछना है? नो दीदी। No, Di. नो दी। ओके अब हम आते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या होता है, इफ कंडीशन के अंदर एक और इफ कंडीशन, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, इफ के अंदर ये कंडीशन दी हुई है, अगर ये ट्रू हुई तो ये इस कोड ब्लॉक के अंदर जाएगा। इसके अंदर हमने एक और इफ कंडीशन लिख दी, अगर वो ट्रू हुई तो फिर इसका जो कोड ब्लॉक है, मतलब जो यहाँ पे हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं वो एग्जीक्यूट होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये वाला कोड देखो, int I equals to 10। अब ये चेक कर रहा है इफ I equals to 10, मतलब अगर जो यूजर की वैल्यू है 10 और जो हमने वैल्यू दी है 10 वो इक्वल है, हाँ भाई इक्वल है, चलो इसके अंदर चलते हैं, फिर ये आएगा इस स्टेटमेंट पे। अब ये वाली स्टेटमेंट चेक होगी, इफ I लेस देन 15, 10 इज लेस देन 15, हाँ, तो फिर ये वाली चीज प्रिंट हो जाएगी, सी आउट I इज स्मॉलर देन 15, यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब ये फिर जाएगा नेक्स्ट लाइन पे, इफ I लेस देन 12, 10 इज लेस देन 12,
हाँ, I is smaller than 12 2 सेकेंड स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। अब ये दोनों स्टेटमेंट तो ट्रू हो ही गई, तो एल्स में जाने की जरूरत है ही नहीं, तो बस ये यहीं से बाहर आ जाएगा। ये if दो if है एक ही if में। क्या? There is two if in single if. She is saying. हाँ, तभी तो उसको बोल रहे हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड मतलब एक इफ कंडीशन के अंदर, एक सिंगल इफ कंडीशन के अंदर बहुत सारी इफ कंडीशंस। अभी एक एल्स इफ लैडर भी आएगी, वो जो नेक्स्ट क्लास में जो भी सेशन लेगा आपका, वो आपको बताएंगे, या फिर हो चुकी है इसकी क्लास। दी एल्स किसके लिए, सेकंड इफ के लिए या फर्स्ट इफ वाले के लिए? क्या? ये जो एल्स आपने लिखा है वो मतलब इफ एल्स वाला होता है ना, तो फर्स्ट इफ का दूसरा है या सेकंड इफ में एल्स है? सेकंड इफ में एल्स है। हम हमेशा लिखते हैं ना इफ एल्स, तो नेस्टेड इफ वही है, इफ के अंदर एक और इफ कंडीशन, और ये जो एल्स है ये इस वाले इफ का एल्स है। 12th वाले का I हाँ। less than 12. Okay. कंपाइलर पे दिखाऊं मैं करके, या फिर हो गया क्लियर? दी अगर I less than 15 नहीं हुआ तो So it will ये दोबारा print greater आएगा। than 15. क्या? दी अगर ये मतलब less than 15 नहीं हुआ तो वो greater than, अच्छा हाँ ठीक है समझ गई। सो किसी को अब कोई डाउट तो बता दो, नहीं तो हम सेशन क्लोज करते हैं। दी असाइनमेंट्स अब वो आपको मिल जाएंगे ग्रुप पे। ओके, थैंक किसी को कोई डाउट? नो दी। दी आप ये जावा में नहीं बताइएगा। हाँ, मेरे को जावा ही आती है एक्चुअली। C++ अदिति को आती है, सो मैं बता सकती हूँ जावा में, बट दी एक दी डाउट लास्ट पहले क्लास का भी बोली थी दी कि वो जावा में मिल जाएगा, बट वो मिला नहीं था। हाँ, तो मैं पीपीटी में ऐड कर दूं जावा के कोड्स, या फिर कैसे बताओ? मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को जावा ही आती है बेसिकली। दी मतलब ये जरूरी है कि हम डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखें? नहीं, तुम्हारी मर्जी है, या तो C++ सीख लो या जावा सीख लो, बट बेसिकली सब C++ में ही करवा रहे हैं डीएससी में, तो C++ कर लो। अगर तुमने अभी तक कुछ भी चूज नहीं किया तो C++ कर लो, क्योंकि मेन फोकस उस पे ही है। और जावा का कोड मैं बता सकती हूँ अगर किसी को पूछना है तो। सब कुछ सेम रहेगा, बस एक दो स्टेटमेंट। दी आप बता दिया करो ना पीपीटी में दी आप साथ में, बता दीजिए। इससे अच्छा। हमारी दो लैंग्वेज कवर हो जाएगी ना एक बार में, क्योंकि कोड तो सेम रहता है, बस सिंटैक्स का फर्क होता है। बट फिर सेशन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा ना, फिर हर कोई कंफर्टेबल नहीं है ना। Also like हर दी आप लैंग्वेज की अपनी PPT में कुछ भी ऐड कर स्पेसिफिकेशंस होती हैं। दो। जावा में बहुत हाँ, ऊप हैवी है, तो फिर तुम्हें वो सब सीखना पड़ेगा। अदिति आ गए आप? कौन बोल रहा है ये? अच्छा। या आई वाज देयर, समवन वाज सेइंग कि हम दो लैंग्वेजेस एक सेशन में करा देते हैं। हाँ हाँ। तो लाइक हर जावा का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मतलब उसमें ऊप हैवी है, सब कुछ ऊप्स है। नहीं, सो अगर एंड तुम चाहते हो कि पीपीटी में ऐड करना है, तो जो सेशन मैं ले रही हूँ उसमें मैं तुम्हें जावा का बता सकती हूँ, और पीपीटी में कोड ऐड कर सकती हूँ, तो तुम बता दो अगर तुम्हें करना है तो। नहीं दी फिर कोई फायदा नहीं है ना। हाँ, वही फिर बात। मुझे करना है। मतलब आती ही नहीं तो क्या फायदा, C++ ही ठीक है। अच्छा। ये एक लैंग्वेज ही दी है। मुझे करना है, मैंने पहले जावा सीखा था, तो मुझे थोड़ा बता दीजिएगा तो सही रहेगा, बिकॉज बहुत पहले 10th में पढ़ा था, तो अभी कुछ ऐसा याद नहीं है, तो एक बार रिवाइज हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। सो जिसको लीव करना है या किसी को कोई डाउट है तो बता दो, नहीं तो जिसको जावा देखनी है वो रुक जाओ, नहीं तो रेस्ट ऑफ यू कैन लीव। दी आई हैव अ जनरल रिक्वेस्ट। क्या आप हमें बता सकते हो कि विजुअल स्टूडियो कोड पे जो भी नेसेसरी एक्सटेंशंस है, आप एक बार उनकी लिस्ट हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हो? हाँ, कर देंगे। Okay, thank you very much, Dee. Like generally for all the languages like HTML, C++, Java, and Python.
ओके Okay, then. Thank you very much, team. एक बट आप सेकंड बट आप पढ़ा बहुत अच्छा रहे हो, कोचिंग वालों से भी अच्छा। ओह थैंक यू सही में। मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ अटेंडेंस का हाँ अगर जिसको जावा देखनी है वो रुक जाओ नहीं तो रेस्ट ऑफ यू कैन लीव थैंक यू स्टार्टिंग फॉर से पढ़ाओगे जावा में, मतलब बेसिक्स? नहीं तुम्हें जो भी पूछना है मतलब मैं सिंटैक्स बता दूंगी कि यही सारी चीजें केस जावा में कैसे करते हैं तो वो सब बता दूंगी बेसिक सिंटैक्स तो अगर जिसको सीखनी है वो रुक जाओ नहीं तो बाकी को लीव कर सकते हैं जो सी प्लस प्लस वाले हैं ओके दीदी। हाँ सो ये सब जावा वाले हैं क्या ओके तो चलो देख लेते हैं एक बार जावा का कोड सो जैसे सी प्लस प्लस में होता था हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम तो जावा में हमारे पास होती है इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार ये क्या होता है जितनी भी लाइब्रेरी फाइल्स है मतलब जैसे सी प्लस प्लस में कौन कौन सी फाइल्स थी सी आउट सी इन ये सब होती थी ना तो ये क्या करता है जितनी भी जावा के अंदर लाइब्रेरी फाइल्स है सारी इंपोर्ट कर देता है सी प्लस प्लस में होता था इंट मेन यहाँ पे होता है हमारे पास पब्लिक क्लास मेन इसके अंदर सारा कोड एग्जीक्यूट होगा मतलब सबसे पहले ये लाइन मैंडेटरी है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स तो ये बेसिकली एक स्टेटमेंट है अभी के लिए तो इसको याद कर लो आगे जाकर तुम्हें पता चलेगा कि ये क्या चीज है तो स्कैनर तो जावा में हमेशा जैसे हम सी प्लस प्लस में इनपुट कैसे लेते थे सी इन करके जावा में हम इनपुट लेते हैं एस सी एन डॉट नेक्स्ट इंट करके अब ये एस सी एन क्या है हमने एक वेरिएबल बनाया एस सी एन करके स्कैनर टाइप का वेरिएबल मतलब ये भी याद ही करना पड़ेगा ये 3 लाइन याद करनी पड़ेगी तुम्हें हमने एक वेरिएबल बनाया एस सी एन स्कैनर एस सी एन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन ये हमारा एक वेरिएबल बन गया जिससे हम इनपुट लेंगे
तो यहाँ पे हमने लिखा int n equals to scn dot next int. नेक्स्ट इंट मतलब हमें इंटीजर वैल्यू लेनी है, हमने यहाँ पे डिफाइन करी है इंटीजर वैल्यू, और ये वाली वैल्यू हमें यूजर से लेनी है, तो हम scn dot next int ऐसे करके लेते हैं। और अगर हमें जावा में कुछ प्रिंट कराना है, system dot out dot print ln, इसके अंदर हम जो भी लिखते हैं वो प्रिंट हो जाता है। बस यही डिफरेंस है जावा और सी प्लस प्लस में कि सी प्लस प्लस में थोड़ा कोड छोटा होता है, इसमें हमें थोड़ी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। उसमें सीधा सी इन से, जैसे यहाँ पे हम लेते थे ना, तो ये सी इन करके लेते थे, यहाँ पे हमें एस सी एन डॉट नेक्स्ट इन से लेना होगा। वहाँ पे हम कैसे लेते थे, सी आउट करके, कुछ चीज़ प्रिंट करानी है तो सी आउट करके करते थे। यहाँ पे हमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन करके प्रिंट कराना होता है। तो बेसिक कोड तो यही रहता है कि प्रिंट कैसे कराना है। अच्छा, तो फालतू में डिफाइन कर दिया। हाँ, तो यहाँ पे हेलो प्रिंट हो गया। सो जावा का कोड ये था, और यही सारी चीज़ें जो हमने आज पढ़ाई थी, अगर बस यही होगा, जैसे इंट डे इक्वल्स टू 4 था, यहाँ पे भी इंट डे इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। ये सब चीज़ें तो सेम रहेगी, बस सी आउट की जगह यहाँ पे आ जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। अब इसमें दो चीज़ें होती है, एक होती है प्रिंट स्टेटमेंट और एक होती है प्रिंट एल एन। प्रिंट होती है कि वो कंटिन्यूस प्रिंट कर देगी, मतलब जैसे सी प्लस प्लस में क्या होता था, बैक स्लैश एन करके, तो इसमें क्या होता है प्रिंट, और अगर हमने प्रिंट एल एन लिखा है तो वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगी। मतलब एक सेकंड मैं दिखा देती हूँ। देखो, हमने यहाँ पे सिर्फ प्रिंट लिखा, तो ये सिंगल लाइन में प्रिंट हो गया, हेलो एंड हाय एक ही लाइन में प्रिंट हुआ है। और अगर मैं यहाँ पे लिखती प्रिंट एल एन, तो ये दो अलग अलग लाइन में प्रिंट हो जाते। हेलो एंड हाय दो अलग अलग लाइन में प्रिंट हो गए। सो यही बेसिक डिफरेंस है प्रिंट में और प्रिंट एल एन के बीच में। और इनपुट लेना मैंने बता दिया, int n equals to scn dot next int करके हमने इनपुट लिया, आउटपुट हमें सी आउट करते थे उसमें, इसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इसके अंदर हमने जो भी लिखा है वो प्रिंट हो जाएगा। तो बस इनपुट और आउटपुट सेम था, यही है, बाकी सब तो सेम रहेगा, ये जितनी भी स्टेटमेंट है स्विच डे एंड ऑल। तो मैं इसमें जावा का कोड भी ऐड कर दूंगी, तो आप देख लेना। किसी को कुछ पूछना है तो बता दो। ठीक है, तो यू कैन लीव नाउ अगर नहीं पूछना तो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। I think who's this? क्या नाम है इस लड़की का जो रह गई है? Rochita Sharma, do you have any Rochita doubt? Sharma. I think she's not here. She's probably turned it on and went away. रिमूव कर देते। हाँ कर दे प्लीज।